Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about frequency spectrum of FM. So what we discuss? We discuss about frequency spectrum of FM. And in that lecture we discussed that the frequency spectrum of FM consists of infinite sidebands theoretically. So theoretically FM spectrum consists of infinite number of sideband. So it consists of infinite number of sidebands theoretically. Okay, so we can say that if there are infinite number of sidebands in FM, then it needs infinite bandwidth. But if you look at the practical concept, or if you look at the practically, then practically most of the sideband do not have enough energy. It means they are not significant sidebands. So only few sidebands which are nearer to the central carrier frequency, which are the significant sideband. So the practical bandwidth that is required to transmit the FM signal is not infinite, because we are interested to cover only those sidebands which are significant sidebands. Significant का मतलब होता है जिसमें 98% ऑफ पावर जिसमें रहता है, जो साइडबैंड 98% ऑफ टोटल पावर कैरी करते हैं उसको हम सिग्निफिकेंट साइडबैंड बोलते हैं. तो सिग्निफिकेंट साइडबैंड को ही हमें ट्रांसमिट करना. वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू अदर साइडबैंड्स विच आर नॉट सिग्निफिकेंट, जिसमें इनफ एनर्जी नहीं, इनफ पावर नहीं है, वो इनफ पावर कैरी नहीं करता है, तो उसको ट्रांसमिट करने का कोई मतलब नहीं है. सो प्रैक्टिकली in order to transmit FM we do not need infinite bandwidth. So Karjan given one rule for determining the practical bandwidth of FM. So what Karjan rule says? According to Karjan rule, the bandwidth requirement to transmit the FM is given as 2 times delta F plus FM. 2 times delta F plus FM, or it can also be written as bandwidth is equal to, दूसरा एक इक्वेशन है, bandwidth is equal to 2 times inside bracket beta plus 1 into FM. Beta plus 1 into FM. Okay, what is beta? Modulation index for FM. Beta is the modulation index of FM. So we can use this equation or this equation in order to determine the practical bandwidth for FM using Karjan rule. और ये इक्वेशन कहाँ से आया? तो सिंपल है, ये इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन डिराइव किया है. तो सिंपल हमारे पास ये इक्वेशन है, उसमें से FM को कॉमन ले लेते हैं. तो अगर मैं FM को कॉमन लूंगा तो क्या होगा? इसमें 2 FM को बाहर ले लेता हूँ इसमें से, तो बचेगा क्या इनसाइड ब्रैकेट? यहाँ पे डेल्टा F बाई FM हो जाएगा. Here we have delta F by FM because I have taken FM common, plus FM को बाहर ले लिया तो 1. And what is this delta F by FM? This term is nothing but modulation index beta. So this is the 2 beta plus 1. इसकी जगह पे मैं बीटा लिख दूंगा, बीटा plus 1 into FM. Correct? So this is the expression for bandwidth of FM using Karjan rule. So this both equation represent Karjan rule for determining the FM bandwidth. Correct? Okay, so this thing we discussed in the last class. Now today we are going to discuss about the types of FM. So basically there are 2 types of FM. One is the narrow band FM, another is the wide band FM. One is the narrow band FM, another is the wide band FM. तो नाम से यहाँ पे हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि नैरो बैंड का मतलब होता है द FM which required smaller bandwidth. The FM which required or which has the small bandwidth, it is known as a narrow band FM. and the FM signal which need large bandwidth, it is known as a
वाइड बैंड एफएम, मतलब जो एफएम की बैंडविड्थ ज्यादा होती है उसको हम वाइड बैंड एफएम बोलेंगे, जिसकी बैंडविड्थ कम होगी उसको नैरो बैंड एफएम बोलेंगे। अब ये नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हमारा एफएम है वो नैरो बैंड एफएम है या वाइड बैंड एफएम है। सो वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एफएम फ्रॉम द मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा। तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा की वैल्यू चेक करेंगे। अगर बीटा की वैल्यू लो होगी मतलब कम होगी देन इट इज द नैरो बैंड एफएम, अगर बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी देन इट इज द वाइड बैंड एफएम। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ बीटा द एफएम में बी नैरो बैंड एफएम और वाइड बैंड एफएम। सो नैरो बैंड एफएम इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इज स्मॉल। जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा स्मॉल होगा तो उसको हम बोलेंगे नैरो बैंड एफएम। अब ये बीटा की वैल्यू कितनी होगी, सो फ्रॉम द टेबल ऑफ बेजल्स फंक्शन इट मे बी सीन दैट फॉर स्मॉल बीटा that is beta less or equal to 0.3 there is only carrier and one significant side bands are there. There is only one carrier and two significant side bands are there। मतलब हमने जो बेजल फंक्शन देखा था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एफएम में, उसमें जो टेबल था बेजल फंक्शन का टेबल था, उसमें जब बीटा की वैल्यू 0.3 से कम या इक्वल थी तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था उसमें एक कैरियर सिग्नल एंड उसके आसपास दो साइड बैंड ही सिग्निफिकेंट थे। बाकी के जितने भी साइड बैंड थे वो सिग्निफिकेंट नहीं थे। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है द साइड बैंड विच हैज द 98% ऑफ टोटल पावर। जो साइड बैंड 98% ऑफ द टोटल पावर कैरी करता है उसको हम सिग्निफिकेंट साइड बैंड बोलते हैं। तो जब बीटा की वैल्यू 0.3 या 0.3 से कम थी उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एफएम के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में एक कैरियर एंड दो साइड बैंड जो थे उसमें ही सिग्निफिकेंट पावर था। ओके, तो उसको ही हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो उस केस में बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, ये देखो ये किसके बराबर है, हमारे एएम के जैसा दिख रहा है, एक कैरियर है दो साइड बैंड है। तो उस केस में याद करो दिस नैरो बैंड एफएम। नाउ जब बीटा की वैल्यू लेस और इक्वल टू 0.3 होगी एट दैट टाइम नैरो बैंड एफएम विल लुक्स लाइक एएम अवर डीएसबी एफसी एएम। और एएम में कितनी बैंडविड्थ चाहिए थी याद करो, फॉर एएम हाउ मच बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड, फॉर एएम द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज ट्वाइस एफएम। तो यहाँ पे भी ये नैरो बैंड एफएम इज लुक्स लाइक एफएम, सॉरी एएम, नैरो बैंड एफएम इज equal to the approximately equal to the double side band suppressed carrier AM signal. So in that case the bandwidth requirement is twice FM। मतलब narrow band FM में कितनी bandwidth चाहिए, twice FM जितनी। ओके, एंड narrow band FM को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, so FM which has modulation index beta less or equal to 0.3 that is referred as narrow band FM। मतलब जो एफएम सिग्नल में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा है वो 0.3 या उससे कम है, उस केस को हम बोलेंगे नैरो बैंड एफएम। क्यों, बिकॉज जब मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.3 या 0.3 से कम होगा तब उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट साइड बैंड होंगे कैरियर के आसपास, और उसको हम बोलेंगे नैरो बैंड एफएम। एंड फॉर नैरो बैंड एफएम मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली 3 किलोहर्ट्ज, याद रखना है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। फॉर नैरो बैंड एफएम मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली 3 किलोहर्ट्ज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 75 किलोहर्ट्ज। सो फॉर नैरो बैंड एफएम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट इज डेल्टा एफ इज 75 किलोहर्ट्ज। समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, गुड। तो ये बात हो गई नैरो बैंड एफएम की। अब वाइड बैंड एफएम को डिस्कशन करते हैं। सो मैंने आगे भी बताया वाइड बैंड एफएम इज वन विच हैज द वैल्यू ऑफ बीटा लार्जर। सो वाइड बैंड एफएम इज डिफाइंड एज द सिचुएशन वेयर द मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इज लार्ज। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा जब लार्ज होगा तो उसको हम बोलेंगे वाइड बैंड एफएम। तो जब बीटा की वैल्यू 0.3 से ज्यादा होगी देन देयर आर मोर देन 2 सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स। मतलब जब बीटा की वैल्यू
लेस और इक्वल टू 0.3 होगी तो FM जो सिग्नल होगा उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कैरियर सिग्नल होगा और उसके आसपास 2 सिग्निफिकेंट साइड बैंड होंगे। ओके, तो इसको हम बोलेंगे नैरो बैंड FM। बट जब बीटा की वैल्यू 0.3 से ज्यादा होगी, 0.3 से ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड 2 से ज्यादा होंगे, मतलब 2 से ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड होंगे। ओके, तो जैसे जैसे बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, याद रखना FM में जैसे जैसे बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड इंक्रीजेस। ओके, नंबर ऑफ significant side band increases and this situation is referred as wide band FM। तो सिंपली वाइड बैंड FM एंड नैरो बैंड FM को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ बीटा। अगर बीटा की वैल्यू 0.3 से ज्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस 2 से ज्यादा होंगे एंड दैट इज रिफर्ड एज वाइड बैंड FM। व्हेन वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इज लेस और इक्वल टू 0.3, in that situation number of significant side bands are 2, okay, and that is referred as narrow band FM, and narrow band FM is approximately equal to the AM, double side band full carrier AM. Now modulation frequency extends from 30 Hz to 15 kHz. In this case, in narrow band FM maximum modulation frequency is usually 3 kHz, correct, and maximum permissible deviation is 75 kHz in wide band FM. And very important point, wide band FM system needs large bandwidth and typically it is 15 times more than the narrow band FM system। मतलब नैरो बैंड FM सिस्टम में जो बैंडविड्थ चाहिए थी वो कितनी थी? ट्वाइस FM थी। तो यहाँ पे इससे 50 टाइम्स ज्यादा, टिपिकली 50 टाइम्स ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए, बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए वाइड बैंड FM को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये था डिफरेंस बिटवीन नैरो बैंड FM एंड वाइड बैंड FM। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन नैरो बैंड FM एंड वाइड बैंड FM, करेक्ट। सो आई होप कि ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन FM। मतलब हमने FM का थोड़ा थियोरिटिकल एनालिसिस तो कर दिया, FM का कंसेप्ट क्या है वो डिस्कस किया, उसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा हमने, फिर हमने FM का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया, फिर FM का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी डिस्कस किया, कार्जन रूल भी डिस्कस किया। अब हम क्या करेंगे? थियोरिटिकल कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं उस पर थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है a sinusoidal modulating waveform of amplitude 5 volt and frequency 2 kilohertz is applied to FM generator। देखो मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म है, कौन सा है? मॉड्यूलेटिंग। मतलब मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? AM से। AM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और वो कितना है? 5 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज। मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दैट इज FM इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज, ओके, which has the frequency sensitivity of 40 Hz per volt, okay, then calculate frequency deviation that is delta F find करना है, modulation index beta and bandwidth, ये तीनों चीज हमें फाइंड करनी है यहाँ पे। तो बेटा ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, ओके, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी 40 हर्ट्ज पर वोल्ट है, करेक्ट। और फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी को हम डिनोट करते हैं KF से। किससे डिनोट करते हैं? KF। सो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी KF इज गिवन एज 40 हर्ट्ज पर वोल्ट, 40 हर्ट्ज पर वोल्ट, ओके। और फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? तो यूनिट से पता चलता है बच्चों, हर्ट्ज पर वोल्ट मतलब आपने जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड में पर यूनिट वोल्ट फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन आता है कैरियर सिग्नल के, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। फिर से अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है उसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है, अगर एम्पलीट्यूड में चेंज 1 वोल्ट है, यूनिट चेंज होता है वोल्टेज में,
तो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज होगा उसके मेजर को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, दैट इज KF, एंड KF इज गिवन एज 40 हर्ट्ज पर वोल्ट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड बैंडविड्थ। तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी का एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है, वो याद रखो। सो फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज गिवन एज डेल्टा F इज इक्वल टू KF इंटू AM, KF इंटू AM। व्हाट इज KF? फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी। व्हाट इज AM? एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है, दोनों को यहां पे रख दो। सो डेल्टा F क्या हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 200 हर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी डेविएशन कितना आया बच्चों, 200 हर्ट्ज। कितना आया, 200 हर्ट्ज, करेक्ट। सो फ्रीक्वेंसी डेविएशन दैट इज 200 हर्ट्ज। अब फाइंड करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा का द फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज बीटा इज इक्वल टू डेल्टा F डिवाइडेड बाय FM, करेक्ट, डेल्टा F डिवाइडेड बाय FM। डेल्टा F की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 200 हर्ट्ज, अभी फाइंड किया रिसेंटली, डिवाइडेड बाय FM इज गिवन इन द एग्जाम्पल, दैट इज 2 किलो हर्ट्ज। ओके, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर लेते हैं। ओके, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 0.1 एंड बीटा इज द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। बीटा इज द डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, करेक्ट। सो बीटा इज इक्वल टू 0.1। ओके, एंड यू कैन से समथिंग अबाउट द टाइप ऑफ FM फ्रॉम द बीटा। यहाँ पे देखो बीटा की वैल्यू 0.1 है, मतलब वो बहुत ही छोटी वैल्यू है, इट इज स्मॉल वैल्यू ऑफ बीटा, लेस देन 0.3, लेस देन 0.3। तो इस FM को, ये FM को हम क्या बोलेंगे, नैरो बैंड FM। सो द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इज 0.1 विच इज लेस देन 1, हेंस इट इज नैरो बैंड FM। ये नैरो बैंड FM है, करेक्ट। अब हमें बीटा फाइंड कर दिया, डेल्टा F फाइंड कर दिया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब क्या बचा, बैंडविड्थ फाइंड करनी है। सो बैंडविड्थ कर्जन रूल यूज करेंगे, जरूर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बीटा की वैल्यू 0.1 है, मतलब ये नैरो बैंड FM है। तो नैरो बैंड FM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AM, और AM में कितनी बैंडविड्थ चाहिए थी, ट्वाइस FM। तो यहाँ पे भी ट्वाइस FM बैंडविड्थ होगी। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 FM इज इक्वल टू किलो हर्ट्ज, दैट इज दी 4 किलो हर्ट्ज। तो ये जो FM सिग्नल हमारे पास है, अभी जो ये एग्जांपल में दिया है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें कितनी बैंडविड्थ चाहिए, 4 किलो हर्ट्ज, बिकॉज इट इज द नैरो बैंड FM। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। FM wave is given by equation S of t is equal to 20 cos inside bracket 8 pi multiplied by 10⁻⁶t है, ये 10⁻⁶t प्लस 9 sin 2 pi multiplied 10⁻³ 103t नहीं, 10⁻³ then calculate frequency deviation, that is delta F, frequency deviation delta F फाइंड करो, बैंडविड्थ फाइंड करो, बैंडविड्थ फाइंड करो, एंड पावर ऑफ FM फाइंड करो, पावर ऑफ FM, पावर फाइंड करो। ये 3 क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको FM का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया था वो आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो ये एग्जांपल आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो पहले रिकॉल करते हैं कि FM का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर द FM इज गिवन एज S of t इज इक्वल टू AC cos 2 pi FCT प्लस बीटा साइन 2 pi FMT। अगर ये याद नहीं है तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये एक्सप्रेशन आपको पता है तो ये आपके लिए एकदम इजी एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आइडेंटिफाई करो कि ये पैरामीटर क्या क्या है। तो AC इज दी amplitude of the carrier signal, FC that is the frequency of the carrier signal, beta that is modulation index, FM is the frequency of the modulating signal। तो अब क्या करना है, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया है एग्जाम्पल में उसको इसके साथ कंपेयर करो। सो लेट्स कंपेयर द गिवन एक्सप्रेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ FM। तो हम कंपेयर करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पैरामीटर हमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे बीटा क्या है 9,
कंपेयर करेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा 9, सो बीटा इज इक्वल टू 9। तो एक तो मिल गया हमें पैरामीटर। दूसरा AC, देयर इज अ पिक और क्या एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, दैट इज अ 20 वोल्ट, AC 20 वोल्ट हो गया। इसको 2 पाई FCT, ये 2 पाई FCT है, मतलब ये 4 पाई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई FCT लिख सकते हैं हम। ओके, मतलब ये 4 हो जाएगा, सॉरी इसको 4 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 पाई और 10�6, ये 10�60, करेक्ट। तो देखो ये क्या हो गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई 10�60, तो हमारा FC क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर करेंगे FC क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10�6 हर्ट्ज, वेरी सिंपल। और इसको हम क्या बोलेंगे 4 मेगाहर्ट्ज। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, ये जो फॉर्मूला है इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो स्ट्रेट फॉरवर्डली द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 4 मेगाहर्ट्ज। सिमिलरली यहाँ से FM मिल जाएगी 2 पाई FM कितना है यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 10�3 हर्ट्ज। सो FM इज इक्वल टू 10�3, दैट इज द 1 किलो हर्ट्ज, दैट इज 1 किलो हर्ट्ज, करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई एक चीज हो सकती है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू ज्यादा है। अगर बीटा की वैल्यू ज्यादा है देन इट इज नोन एज अ वाइड बैंड FM स्ट्रेट फॉरवर्डली। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ बीटा इज ग्रेटर और लार्ज देन इट इज द वाइड बैंड FM। अब फाइंड क्या करना है, डेविएशन। तो डेल्टा F कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा F कैसे फाइंड करेंगे, हाँ ना, डेल्टा F कैसे फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला से डेल्टा F मिल जाएगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बच्चों, डेल्टा F डिवाइडेड बाय FM। तो डेल्टा F को सब्जेक्ट बना लो इसमें, तो डेल्टा F को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा F इज इक्वल टू बीटा इंटू FM, करेक्ट। बीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लिया हमने, दैट इज 9, और FM की वैल्यू भी आइडेंटिफाई हो गई है, दैट इज 1 किलो हर्ट्ज। सो डेल्टा F इज इक्वल टू 9 किलो हर्ट्ज, डेल्टा F इज इक्वल टू 9 किलो हर्ट्ज। तो हमें फ्रीक्वेंसी डेविएशन यहाँ पे मिल गया, फ्रीक्वेंसी डेविएशन हमें यहाँ पे मिल गया। बैंडविड्थ फाइंड करनी है, तो बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए वाइड बैंड FM है तो कार्जन रूल यूज करेंगे। सो यूजिंग कार्जन रूल द फॉर्मूला फॉर द वाइड बैंड FM इज गिवन एज बैंडविड्थ इज इक्वल टू इनसाइड ब्रैकेट बीटा प्लस 1 इंटू FM। याद करो कार्जन रूल फॉर फाइंडिंग द बैंडविड्थ ऑफ FM, 2 इनसाइड ब्रैकेट बीटा प्लस 1 इंटू FM। तो बीटा कितना हो गया यहाँ पे 9, बीटा की वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 1 इंटू FM दैट इज 1K। सो बैंडविड्थ इज, इसको सॉल्व करेंगे तो बैंडविड्थ आपको मिलेगी 20 किलो हर्ट्ज। तो ये FM सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए आपको 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए, मतलब ये जो सिग्नल है ये FM सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें कितनी चाहिए 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ चाहिए। तो ये सेकंड पैरामीटर फाइंड आउट हो गया। अब पावर फाइंड करते हैं, तो पावर ऑफ FM इज गिवन एज PC इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। याद रखो बच्चों, पावर ऑफ द कैरियर सिग्नल इज गिवन एज AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। अब फॉर सिंप्लिसिटी वी एज्यूम दैट सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम है। ओके, तो इफ R इज इक्वल टू 1 ओम एंड सब्सटीट्यूट वैल्यू फॉर AC की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली है 20 वोल्ट, उसको सब्सटीट्यूट करो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R में, तो ये क्या हो जाएगा 20 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 ओम। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा पावर इज इक्वल टू 200 वाट, करेक्ट। ओके, सो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं। सो फ्रॉम टॉपिक ऑफ FM you can find such type of numericals in exam. Okay, so I hope कि ये जो न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। So आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इन टूडेज क्लास, वी हैव डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ FM, that is types of FM, narrow band FM and wide band FM, and we discussed 2 numericals of FM. Okay, so I hope कि आज हमने जो भी डिस्कशन किया आपको समझ में आ गया होगा। Let's stop here. We'll discuss other aspect of this angle modulation in our next video lecture. Thank you very much.